Good morning, ninth class. Today we will do the left examples. So, example number 3 is ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC and AD bisects exterior angle PAC and CD is parallel to AB. Figure is given. Let us see the figure. Question is, I repeat, ABC is an isosceles triangle. I have made this figure. ABC is isosceles triangle in which AB is equals to AC. These sides are equal. AD means we will produce it somewhere here. AD is such that bisect exterior angle PAC means let us produce AB up to P. Now PAC ਨੂੰ AD जो है वो bisect कर रही है means this angle 1, this angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. Further, CD is parallel to AB. CD means C ਨੂੰ ਆਪਾਂ join करना D ਦੇ ਨਾਲ. D कित्थे है? Somewhere like this. Here it is D, such that AB is parallel to CD. ठीक है बेटे. Now what is given to us? Let us write. Given is, पहली गल की given है बेटे कि AB is equal to AC. Isosceles triangle है और दस्या होया है कि AB is equals to AC. Secondly, it is given that angle 1 is equals to angle 2 according to this figure. Thirdly, it is given that AB is parallel to CD. ये तीन चीज़ां ने बेटे ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ given ने. Right? What we have to prove? We have to prove that angle DAC is equals to angle BCA and secondly ABCD is a parallelogram. So let me write here. We have to prove that angle DAC that is angle 2 is equal to angle BCA. Okay. Let me name it 3 and this angle as 4. So we have to prove that angle DAC is equals to angle BCA, that is angle 2 is equals to angle 3. ये चीज़ असी प्रूव करनी है. Secondly असी की प्रूव करना है ABCD is a parallelogram. जो ये बनी फिगर है ABCD, it is a parallelogram. Now ਹੁਣ proof ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ given ਹੈ कि ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. जे isosceles triangle है, these two sides are equal means these two angles are also equal. What is the reason? Reason बेटे देना ज़रूरी है. ठीक है, आप कहेंगे because AB is equal to AC, it is given. This implies angle 3 is equals to angle 4. Angles opposite to equal sides are equal. What is the reason? Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है. Now जे एंगल्स इक्वल ने फर्दर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਹੈ PAC, पूरा एंगल PAC, ये वाला पूरा एंगल जो है इट इज़ इक्वल्स टू दिस एंड दिस मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. वाई? बिकॉज ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होंदा है वो ਉਹਦੇ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होंदा है. सो एंगल PAC दैट इज़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equals to angle 3 plus angle 4 because exterior angle is equal to
exterior angle is equals to sum of opposite interior angles। ठीक है ना, ये थ्योरम्स अपनियां पहलां कीतियां होईयां ने। नाउ बेटे AD बाइसैक्ट एंगल PAC सानू गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है ना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज गिवन, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इट मीनस मैं एंगल 1 की जगह पर भी एंगल 2 लिख सकती हाँ। दिस इंप्लाइज टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। और मैं 3 प्लस 4 नू भी, क्योंकि 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, आई कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है ना, तो देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हुणी आप प्रूव किया। इट दिस इंप्लाइज 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल 3। 2 नाल 2 कैंसल हो गया बेटे। दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। यही चीज़ असी प्रूव करनी सी, 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एंगल 2 का नाम की सीगा, एंगल DAC, और एंगल 3 का नाम की सी, एंगल BCA। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। नाउ फॉर सेकेंड पार्ट असी की प्रूव करना है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इट मीनस असी की प्रूव करना है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। ना AB इज़ पैरेलल टू CD, ये चीज़ तो सानू गिवन ही है। हुण जे असीं ये प्रूव कर दईए कि BC इज़ पैरेलल टू AD तो ये प्रूव हो जाएगा। देखो बेटे आप हुणी की प्रूव किया कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड दिस AB इज़ पैरेलल टू CD सानू गिवन है। इट मीनस जे AC एक ट्रांसवर्सल वजों एक्ट कर रही है एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस मीनस के दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ने ऑटोमेटिकली मीनस BC इज़ पैरेलल टू AD। हुण यही चीज़ बेटे असीं लिख देनी है। सो लेट मी राइट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 फॉर सेकेंड पार्ट। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड AC इज एक्टिंग एज ट्रांसवर्सल। AC is the transversal of lines BC and AD। BC and AD दी जो AC है वो की है ट्रांसवर्सल। दिस इंप्लाइज BC इज पैरेलल टू AD। तो कि पता चल गया कि BC इज पैरेलल टू AD। ऑल्सो AB is parallel to CD, this was given to us। ठीक है, जो opposite pairs है parallel ने, this implies ABCD is a parallelogram। ठीक है, opposite pairs parallel हो गए, it means ABCD is a parallelogram। Next example number 5 is show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle। स्टेटमेंट बेटे बड़े ध्यान नाल पढ़ना। देखो बाइसैक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सानू की गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। दिस इज अ पैरेललोग्राम राइट, ABCD। नाउ बाइसैक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये जेडे बाइसैक्टर ने मीनस दिस इज़ वन बाइसैक्टर है ना, जो मीन्स आ वाला एंगल, एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दिस इज अनदर बाइसेक्टर, दिस इज थर्ड बाइसेक्टर एंड दिस इज फोर्थ बाइसेक्टर, लाइक दिस। फर्दर वो की कह रहे हैं कि जो बाइसेक्ट किया मीन्स दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, ठीक है, दिस इज एंगल 5, एंगल 6, दिस इज एंगल 7, एंगल 8, ठीक है।
क्वेश्चन की गिवन है सानू कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, क्योंकि ये बाइसैक्टर्स ने। और कित्थे जाके मीट होए आ? इत्थे, जिथे ए दा और बी दा बाइसैक्टर मीट हो गया, दैट इज़ पॉइंट पी। सिमिलरली जिथे बी और सी दा बाइसैक्टर है जिहड़ा मीट हो गया, दिस पॉइंट, इट इज़ क्यू। ठीक है, जिथे सी और डी का बाइसैक्टर मीट हो गया, दिस पॉइंट, इट इज़ आर। एंड दिस पॉइंट जिथे ए और डी का बाइसैक्टर मीट हो गया, दिस इज़ एस। असी की प्रूव करने कि जिथे बाइसैक्टर मीट होके जो आ चीज़ बनी है, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। ओके बेटे, सो लेट अस राइट व्हाट इज़ गिवन टू अस। की गिवन है सानू? सब तो पहले ये गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है। सेकेंडली सानू की गिवन है कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज़ इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज़ इक्वल्स टू एंगल 8। जिस तरीके नाल मैं फिगर बना ली। ठीक है। वट वी हैव टू प्रूव, असी ये चीज़ प्रूव करनी है कि पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। की प्रूव करना है? पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। नाउ हर प्रूफ के लिए असी की करांगे बेटे? असी लिखांगे, नाउ बेटे इन प्रूफ फर्स्टली हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल डी। हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल डी मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 3 ले रही हैं मैं इन ट्रायंगल डी, सॉरी ए एस डी। लेट अस इमेजिन दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए एस डी। एंगल 1 प्लस एंगल 3, दैट इज एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, एंड एंगल 3 इज हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। हम जो मैं हाफ कॉमन ले लवां, ठीक है, की बन जाएगा बेटे? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी। जे बेटे असीं ध्यान नाल देखिए, क्योंकि ए बी सी डी की एक पैरेललोग्राम है एंड ए डी नूं एज अ ट्रांसवर्सल मान के चलिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल सॉरी एंगल ए एंड एंगल डी लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर दी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी आप कंजैक्टिव एंगल्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों प्लस करके कितने डिग्री के होंगे आ? 180 डिग्री के। इट मीनस दिस इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देवांगे इतने बेटे आप कंजैक्टिव एंगल्स या फिर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 90 डिग्री आ गया। दिस मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नो फरदर जे आप गल करते हैं बेटे, इनू तुसी फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नैक्सट हम आप कहिए इन दिस ट्रायंगल एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। नो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। फ्रॉम 1 मैं वैल्यू पुट करती फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। दिस इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज एंगल 5 कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। एंगल 5 केड़ा? दिस वन, सॉरी एंगल, आई एम सॉरी बेटे 5 नहीं लिखना सी, इत्थे मैं लिखना सी एंगल डी एस ए, ठीक है ना। सो एंगल डी एस ए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी एस ए, चाहे इनू बेटे असी कोई नाम दे सकते हैं, क्योंकि 8 तक असी ऑलरेडी दिता है, असी 9 नाम दे सकते हैं, ठीक है।
स्पेस घट है तां करके मैं DSA नाम देता। सो इट मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल DSA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल DSA is equals to 180 minus 90 degree, that is angle DSA is equals to 90 degree। ठीक है ना। हुण बेटे जे एक एंगल DSA आ वाला 90 डिग्री का हो गया, इट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री, दैट इज PSR वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज एंगल PSR is equals to 90 degree। what is the reason? vertically opposite angles। ਹੁਣ बेटे सिमिलरली ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this angle is of 90 degree, this is of 90 degree, this is of 90 degree। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ SRQ is equals to angle PQR is equals to angle QPS is equals to 90 डिग्री। सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज जे सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए दैट PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। दिस इंप्लाइज PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटे। Next bete, moving to example number 6, ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD. This is the figure given to us. ABCD is a parallelogram and P and Q are midpoints of AB and CD। P AB का midpoint है, Q की midpoint है, CD का। ठीक है। फिर बोल रहे हैं if AQ intersect DP at S, AQ intersect AQ है, ठीक है ना। AQ intersect DP, AQ और DP जिथे intersect कर रहे हैं किहड़े पॉइंट ते S ते, and BQ इंटरसैक्ट CP एट R। ये दोनों लाइनस कितने इंटरसैक्ट कर रही ने R ते। तो असी ये चीज़ शो करनी है कि APCQ दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। सेकेंडली असी प्रूव करना है कि DPBQ दिस थिंग इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। And thirdly we have to prove that PSQR means जो अंदर ये चीज़ बन गई, this is also a parallelogram। ठीक है। So let me make the figure for you। This is a parallelogram ABCD, है ना। ABCD and P and Q are midpoints of AB and CD। ठीक है। Now let me join A with Q and B with Q। Let me join D with P and C with P। Now we have to prove that this is also a parallelogram, this is also a parallelogram, and in between this is also a parallelogram। This is point S and this is point R। ठीक है। Firstly we will write what is given to us। Firstly ABCD is a parallelogram, this is given to us। Secondly AP is equals to BP and DQ is equals to CQ, because P is midpoint and Q is midpoint of AB and CD respectively। Now the things which we have to prove is APCQ is a parallelogram firstly। ठीक है। Second DPBQ is a parallelogram।
डी पी बी क्यू, चाहे इनू बेटे आप क्यू बी पी डी भी बोल सकते हैं, एक डायरैक्शन ले लैनी है जिहदे च आपां चलना, ठीक है। डी पी बी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। थर्डली पी एस क्यू आर, पी एस क्यू आर is a parallelogram. Now in proof for first part is we have to prove APCQ is a parallelogram. देखो बेटे AB is parallel to CD, it is given to us, ठीक है ना। AB is parallel to CD, it is given, क्योंकि opposite sides of parallelogram are parallel, ठीक है ना। सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, दिस इंप्लाइज कि उसका जो छोटा पार्ट है ए पी इज़ ऑल्सो पैरेलल टू सी क्यू, दिस इंप्लाइज ए पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है। सेकेंडली पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। इट मीन्स ए पी इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी एंड सी क्यू, Q is midpoint of CD, it means CQ is equals to half of CD, CQ is equals to half of CD, बट अपन पता है कि AB is equal to CD, ठीक है ना। AB is equals to CD, why? Because opposite sides of parallelogram are equal, ठीक है ना। opposite sides of parallelogram are equal, this implies जे ए बी सी डी दे इक्वल है और पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू सी डी का मिड पॉइंट है, दिस इंप्लाइज के ए पी इज़ इक्वल्स टू सी क्यू, दिस इंप्लाइज ए पी इज़ इक्वल्स टू सी क्यू। नो बेटे असी थ्योरम की सी कि जे किसी भी क्वाड्रीलेटरल दियाँ दो साइड्स पैरेलल ने एंड इक्वल ने, ए पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू एंड ए पी इज़ इक्वल्स टू सी क्यू, this implies APCQ, APCQ is a parallelogram, APCQ is a parallelogram, ठीक है ना। हुण इहदा जिहड़ा सैकेंड पार्ट है बेटे उहनूं असीं प्रूव नहीं करना, असीं सिमिलरली लिख दांगे। सिमिलरली बी पी डी क्यू इदा बोल दो, चाहे डी पी बी क्यू, ठीक है। सिमिलरली आप लिख के करांगे डी पी बी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट असी रीजन दे सकते हैं, इत्थे की आएगा बेटे कि डी क्यू इज़ पैरेलल टू बी पी एंड डी क्यू इज़ इक्वल टू बी पी। रीजन की देवांगे बिकॉज डी क्यू इज़ पैरेलल टू बी पी, बिल्कुल उस तरीके दे नाल, एंड डी क्यू इज़ इक्वल टू बी पी। देयर इज़ नो नीड टू प्रूव वंस अगेन, जस्ट वी विल राइट इन शॉर्टकट। नाउ लेट अस मूव टू इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट असीं की प्रूव करना है कि PRQS दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। हुण इहदे लई आपां की कहांगे इन क्वाड्रीलेटरल, पहलां आपां इहनूं क्वाड्रीलेटरल मान के चलदे हां। देखो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम मीनस दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड, दिस इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, दिस मीनस दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो असीं कह सकते हैं कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। आप कहांगे इन क्वाड्रीलेटरल पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ PSQR क्योंकि असी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। PSQR इन दिस SP is parallel to QR and SQ is parallel to PR, SP is parallel to QR, ठीक है ना। ये पूरी लाइन है पैरेलल सी क्योंकि इसी पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, एंड SQ is parallel to PR because this is also a parallelogram, ठीक है। इत्थे आपां लिख सकते हैं प्रूव्ड above,
ठीक है, दिस इम्प्लाइज पी एस क्यू आर इज़ अ पैरेललोग्राम। जो ऑपोजिट साइड्स, दोनों ऑपोजिट साइड्स का जोड़ा पेयर है वो पैरेलल हो गया, दिस मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ओके, दैट्स ऑल।